So before we go deep into the poem, let me introduce the poem. This poem is very sensitive poem. Through this poem, the poet tries to sensitize, भावुक करना चाहता है readers को, पाठकों को. Through this poem, the poet wants to highlight, poet जोर देना चाहता है that trees are non-different from living things. Tree भी living things की तरह ही होता है. It is just like other beings. ये पोएट का मानना है. So the poet equates the trees with human beings. Cutting a tree would mean damaging a human being, killing a human being. Tree को काटने का मतलब मानो को इंसान का ही हत्या कर रहे हैं. किसका मानना है ये? पोएट का. So it is not easy to cut a tree, to kill a tree. It takes too much time to kill a tree because it regrows. बाउंस करने का क्वालिटी होता है ट्री में. Its survival instinct is immense. बहुत ज्यादा होता है. जहां से काटोगे वहीं से shoots उग जाएंगे. If you want to destroy the tree, you will have to uproot the tree fully from the cavity of the earth. अर्थ में खाई बना के पूरे रूट को निकालना होगा. So now we will do line by line explanation. I will be going to discuss line by line explanation of the poem on killing a tree by G. Patel. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. Jab. Jab means sudden rough blow. कुल्हाड़ी से कोई गया और वॉर कर दिया, उसको जैब कहते हैं. Second term that you have to know is leprous hide. Leprous hide means discolored bark. Leprous has come from the root word leprosy, discolored bark. Leprous hide, leprous has come from leprosy, a disease where the skin of a person becomes whitish, discolored. It takes much time to kill a tree. The poet says that simple cut does not destroy a tree. A simple jabbing would not damage a tree. A sudden rough blow would not damage a tree. Not a simple jab of the knife. A simple strike of knife would not damage a tree. Tree could not be killed by simply giving a rough blow on its surface, on its trunk. Simple jab of the knife will not do it. Simple jab of knife, simple strike of knife will not damage the tree. It has grown slowly, consuming the earth. A tree grows gradually. धीरे धीरे ट्री बड़ा हुआ है. It is rooted in the soil. All these days it was rooted in the soil. Slowly consuming the earth. धीरे धीरे उसने कंज्यूम किया है, अर्थ के न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण किया है, अपने आप को मजबूत किया है. कौन? ट्री. राइजिंग ऑफ इट, सनलाइट लेकर के, न्यूट्रिएंट्स लेकर के, तब जाकर के वह राइज किया है, खड़ा हुआ एक विशाल बट वृक्ष के रूप में, एक वृक्ष के रूप में. क्या फीड किया है? फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. क्रस्ट मीन्स अर्थ क्रस्ट. सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को उसने फीड किया है, लिया है, उससे भोजन प्राप्त किया है, न्यूट्रिएंट्स लिया है. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और एब्जॉर्ब किया है सनलाइट, विटामिन्स फ्रॉम सन रेज. एयर ग्रहण किया है एनवायरमेंट से, वाटर ग्रहण किया है. इट हैज बिकम सो स्ट्रेंथेंड एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. और उसके लेप्रस हाइड यानी छाल, तब जाके वहां से लीव्स स्प्राउट हुआ है और ट्री का निर्माण हुआ है. एनी प्रॉब्लम? सो प्लांट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो इनटू अ बिग ट्री. A tree is firmly bound with the soil. It takes its in sunlight, water and air to grow into a strong trunk, and then numerous leaves shoots out. तो फर्स्ट स्टैंजा में ट्री का कैसे निर्माण हुआ, कैसे ग्रोथ होता है, इसके बारे में चर्चा है. सेकंड स्टैंजा, so hack and chop, but this alone won't do it. Hack means, you write hack means cut roughly by striking heavy blows. So hack and chop.
सिंपली जाकर कोई हैक कर दे, एक रफ ब्लो दे दे ट्री के ऊपर एक्स से, नाइफ से, बट दिस अलोन वोंट डू इट। इससे ट्री को कुछ होने वाला नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, कोई ज्यादा पेन भी नहीं होगा, बहुत सहनशील होती है वृक्ष। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जैसे इंसान के शरीर पर कोई वॉर करे तो ब्लीडिंग होता है, खून बहता है, वैसे ही ट्री के ऊपर कोई वॉर करता है तो वो भी लिविंग रूप में उससे वाटरी लिक्विड निकलता है, दैट हैज बीन कंपेयर्ड विद ब्लड। ब्लीडिंग बार्क, उसका भी बार्क क्या होगा, ब्लीड करता है, व्हाइटिश लिक्विड निकलता है, लेकिन वह रफ ब्लो को वो तुरंत क्या करेगा, रिबाउंस करके हील कर लेगा। हीलिंग क्वालिटी इट हैज, ट्री हैज, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। अगर तुम पेड़ को जैब भी कर दो, कट कर दो, अगर जड़ को नष्ट ना करो तो उसी हिस्सा से क्या होगा, राइज कर्ल्ड, घुंघरेला ढंग से ग्रीन ट्विग्स, हरे हरे पत्ते बेल के तरह निकल जाएंगे। मिनिएचर बाउज, मिनिएचर मीन्स टाइनी बाउज, मिनिएचर बाउज, टाइनी बाउज, छोटे छोटे ब्रांच निकल जाएंगे। अगर थोड़ा सा काट भी दिया ट्री को फिर भी वो मरेगा नहीं। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन, और रूट को अगर रहने दें, ऊपर से ही काट दें और फिर अनचेक्ड छोड़ दें उसको, उसके बाद डैमेज ना करें, then it will expand again to former size, फिर से ट्री अपने फॉर्मर स्टेज में आ जाएगा, फिर से ट्री उठ खड़ा होगा। So the humans cut the chop the bark of trees into many pieces, but that is not sufficient to destroy the tree. Simply a cut or chop or hack on the bark of trees, that is not sufficient to destroy a tree. ये पर्याप्त नहीं है ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक हैकिंग, एक जैबिंग। The point of the trees which gets cut gives out sap just like a human being's bleed. When you give blow, जब आप हैक करते हो, जैब करते हो ट्री के ऊपर, लाइक ह्यूमन बींग्स, उससे लिक्विड, ह्यूमन बींग्स जब वॉर करेंगे तो ब्लड निकलता है, लेकिन जब ट्री के ऊपर वॉर करते हैं तो सैप निकलता है, एक लिक्विड निकलता है। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स ब्लीड, जैसे इंसान के शरीर से खून निकलता है, वैसे ही लिविंग थिंग्स के तरह उसका भी खून निकलता है सैप के रूप में। यानी ग्रेजुअली दिस वुड हील एंड फ्रॉम देयर न्यू ब्रांचेस स्टार्ट ग्रोइंग अगेन। आप डैमेज तो कर दिए हैक करके, जैब करके, अगर तुम अनचेक फिर छोड़ दो उसको, अगेन इट विल हील इट, वो फिर से चंगा हो जाएगा और खड़ा हो जाएगा। फिर उसी पार्ट से जहां हैक किए थे, रफ ब्लो मारे थे, वहीं से ब्रांच स्टार्ट हो जाएगा शूटिंग करना, फिर से ब्रांच वहां से निकल जाएगा। इट इज नॉट इजी टू किल अ ट्री। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द इनकरिंग अर्थ। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। इतना से काम नहीं चलेगा। ट्री को मारने के लिए रूट इज टू बी पुल्ड आउट, पूरे जड़ को धरती के कैविटी से निकालना होगा, पूरे जड़ सहित, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जो रूट एंकरिंग किया है। एंकरिंग अर्थ मीन्स ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ द रूट्स इन द अर्थ, सिक्योरली एंकर्ड, सिक्योरली हेल्ड। जो रूट है वो क्या किया है, अर्थ को एंकर किया है, सिक्योरली पकड़ के रखा है। अब क्या करना है ट्री को मारने के लिए, मानो स्टेज बता रहा है पोइट, हाउ टू डू इट इज टू बी रोप्ड। उसके ब्रांचेस पे रस्सी बांधना होगा, टाइड, उसको पूरी तरह से बांधना होगा रस्सी से, मोटे रस्सी से, एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और उसको खींचना होगा पूरे ब्रांचेस को, और जड़ को स्नैप्ड आउट, पूरे कैविटी से निकालना होगा। पुल्ड आउट एंटायरली, पूर्ण रूप से उसके जड़ को निकालना होगा कैविटी से, आउट फ्रॉम द अर्थ केव। मानो कि धरती में कोई केव है, खाई था, जहां जड़ उसका विद्यमान था, उस जड़ को उस कैविटी से निकालना होगा इन ऑर्डर टू किल अ ट्री, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। अब यहाँ पे ट्री का जड़ को निकालना भी आसान नहीं है, और यहाँ पे मनुष्य जो पेड़ काटना चाहता है उसे आभास हो जाएगा ट्री की सच्ची शक्ति का, उसको आभास होगा, रियलाइजेशन होगा। द सोर्स वाइट एंड वेट, जो जड़, तुम जड़ को भी काट कर निकालोगे कैविटी के साथ तो क्या निकलेगा, वाइट
एक व्हाइट पदार्थ निकलेगा, नमी रहेगा उसमें। द मोस्ट सेंसिटिव, बहुत हिडन सेंसिटिव पार्ट है वो, व्हाइट पार्ट रहेगा। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, वो रूट ईयर्स से धरती के अंदर एंकर्ड था। एंड द पोएट सेज दैट इन ऑर्डर टू किल द ट्री इट हैज टू बी अपरूटेड। सो इन दिस स्टैंजा पोएट सेज दैट टू किल अ ट्री कंप्लीटली इट हैज टू बी अपरूटेड, उसको अपरूट करना होगा। One has to separate the tree from the earth which support it, earth which anchors the root. You have to detach it. आपको detach करना होगा। The roots of the trees bind the tree with the soil in the pit of the earth. So the roots of the tree binds itself in the cavity of the earth. From there, the most sensitive and hidden part of the tree, the roots have to be detached. So from that cavity, you have to detach the root completely. The roots are white in color and are damp. When you will cut the root, when you will try to extract it, बिल्कुल damp होगा वो, white in color होगा वो काटने के बाद। Then the matter of scorching and choking, इतना पर भी नहीं मरेगा ट्री। अब आपने पूरे कैविटी से निकाल के उसको जड़ से बाहर कर दिया, धरती पे रख दिया, सरफेस पे रख दिया। Then the matter of scorching and choking, अब मैटर क्या आएगा, अब मामला क्या आएगा, अभी भी नहीं मरेगा वो, स्कॉर्चिंग करेगा, सन के रेज से हीटेड हो जाएगा पूरे ब्रांचेस जिसको आप निकाल चुके हो पूरे ट्री को। एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, और मानो कि जैसे इंसान चोक करता है, दम घुटता है मरने के वक्त, इसका भी पूरा ब्रांच, पूरा ट्रीज मानो घुट रहा हो, बिल्कुल हीटेड हो जाएगा सन रेज से, एयर से, और ब्राउनिश कलर हो जाएगा पूरे ट्री का, ब्रांचेस का, जिसको आप निकाले हो काट करके कैविटी सहित रूट को। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, हार्डेंड होगा पहले पूरे ब्रांचेस, पूरे ट्री का हिस्सा, फिर ऐठ जाएगा इन द इम्पैक्ट ऑफ द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। एनी प्रॉब्लम, विदरिंग, तब मुरझाएगा पहले वो, एंड देन इट इज डन, और तब जाकर के वो मरेगा। Then your work is complete. Then a person who has gone to cut the tree to kill a tree, his work will be accomplished. Once the tree has been uprooted, then gradually it withers and dries up. So in the last stanza, poet says that if you uproot the tree, then also it will not die. It is not completely killed. Gradually it will wither. धीरे धीरे मुरझाएगा। And dries up, सूखेगा in the impact of sun rays, scorching sun. Dries up, सूख जाएगा, action of heat and wind, वायुमंडल के हवा से, heat of the sun से सूखेगा पहले वो। Trunk will become brown, पूरे branches, trunk जिसको निकालो कैविटी सहित, brownish कलर पहले हो जाएगा, twist हो जाएगा, ऐठ जाएगा वो in the impact of heat, and will harden, और बिल्कुल कड़ा हो जाएगा वो, हार्ड हो जाएगा उसका ऐट करके उसका सारे ब्रांचेस, ट्रंक। एंड फाइनली ट्री विल डाई दिस वे, दिस मैनर, देन ओनली यू कैन किल अ ट्री। इट इज नॉट इजी टू किल अ ट्री। इस पोएम से क्या कहना चाहता है पोएट, इट इज नॉट इजी टू किल अ ट्री। ट्री में मानो जिजीविषा है, जीने की तीव्र इच्छा है, मानो मनुष्य के सेवा के लिए वो मौजूद है, वो मनुष्य के लिए जीना चाहता है, उसे मारना आसान नहीं है। और हम मूर्ख मनुष्य, वी इनोसेंट पीपल, वी ह्यूमन बीइंग्स आर सो क्रूएल दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग द ट्री विच इज सेवियर ऑफ अर्थ, विच इज अ सेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो हमारे सेवा हेतु है, हमारे सेफ्टी के लिए है, अर्थ के सेफ्टी के लिए है। सो द होल पोएम इज अ वॉइस ऑफ गिव पटेल that we should avoid cutting trees. We should avoid damaging trees, flora. We should avoid damaging the natural vegetation in order to exist on this earth. एक तरफ हम पेड़ काटने के पक्ष में रहते हैं, पेड़ काटते हैं, एक तरफ वो जीना चाहता है फॉर ह्यूमन बींग्स, ऐसा प्रतीत होता है। अपने सेवियर को हम डैमेज कर रहे हैं, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसा एक्ट होगा पेड़ को काटना। So in the whole poem, poet voices that we should not damage our natural vegetation. We should save tree so that we can exist on this earth.
Human existence can be continued on this earth if we will damage the trees, natural vegetation. Human life will be in danger. Human life will get extinct. Any problem? Thank you.